Welcome dear parents, teachers and my lovely students. I am Miss Neha Tale and I am here delighted and privileged to welcome you all to this wonderful webinar organized by Prabhat Kids School. We at Prabhat Kids School are committed for an all-round and balanced education based on intelligence as well as physical and moral transformation. We strongly believe that education is the movement from darkness to light. This lockdown has forced us to rethink the ways we used to lead our lives. This is becoming a new normal, one of the major change in the way we used to study. Use of technology has surely made things better, but due to our online classes, there is a considerable increase in the screen time. Many parents are under the belief that technology and gadgets are essential for a child's development. Screen time can be a part of healthy lifestyle when it is balanced with the activities. As stakeholders, what is our responsibility and how we can help our children to create a balance is very crucial topic. And to enlighten us on this topic, we have Dr. Narendra Rathi. But before proceeding, let us have a formal introduction. You are Dr. Narendra Rathi. He is a pediatrician in our city, Akola. He focuses on physical, mental and social health problems that could affect the growth and development of our children. He has won International Award in 2011 and National Award in 2013. He has an experience of +7 years at various institutes across Maharashtra. Most of the parents must be knowing our guest of honor, Dr. Narendra Rathi, as earlier his hospital was Rathi Children's Hospital at Civil Lines. It is now known as Smile Children Hospital and is located at Tilak Park, Ramdaspet, Akola. This is the only hospital in Akola with NABH accreditation. NABH accreditation is an international standard. Dr. Narendra Rathi has recently conducted various successful seminars on lockdown and post-lockdown educational challenges and solution and school education in the post-COVID world. Let me take an honor and welcome our guest. Over to you, sir. नमस्कार, मी डॉक्टर नरेंद्र राठी, बालरोग तज्ञ, स्माइल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, रामदासपेठ, अकोला. आज आपण स्क्रीन टाइम किंवा मोबाईल यूज बद्दल बोलणार आहोत. तो आज का हमारा जो विषय है वो है स्क्रीन टाइम. आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस विषय को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल पर रहता है, दिन भर टीवी देखता है, खाना भी खाएगा तो टीवी के सामने ही बैठकर खाएगा, अदरवाइज़ नहीं खाता है. तो कैसा करें? अब ये स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है. तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है ये देखेंगे हम. स्क्रीन टाइम का मतलब है कि बच्चा कितनी देर तक सभी स्क्रीन्स को मिलाकर कितना समय स्पेंड करता है. जैसे उसमें टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, वीडियो गेम्स आ गए, टैबलेट्स आ गया, तो ऑल स्क्रीन्स, सभी स्क्रीन्स मिलाकर जितना समय प्रतिदिन बच्चा स्क्रीन पर बिताता है, इसको कहते हैं स्क्रीन टाइम. अब हम जब वर्कशॉप लेते हैं स्क्रीन टाइम के ऊपर 2-3 घंटे का पेरेंट्स के साथ, तो हम 2 सवाल शुरुआत में उनको पूछते हैं कि स्क्रीन टाइम अच्छा है या बुरा. तो 99% जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि स्क्रीन टाइम तो बुरा है. मैं आपको बता दूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं होती है. उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो यूज़ है, ये बुरा हो सकता है. वो चाहे मोबाइल की टेक्नोलॉजी हो या परमाणु बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी हो. टेक्नोलॉजी कभी बुरी नहीं होती. परमाणु बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी से ही हम आज कितनी सारी ऊर्जा बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, कितने सारे बीमारियों का इलाज उससे कर रहे हैं, और एक तरफ उससे विनाश भी कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है ये सही या गलत हो सकता है, टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती है. उसी तरह से मोबाइल ये गलत चीज़ नहीं है, टीवी ये गलत चीज़ नहीं है. इसका यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं वो गलत हो सकता है. तो इसलिए इस चीज़ का आज हम ध्यान करेंगे. दूसरी चीज़ हम पूछते हैं कि पेरेंट्स को कि अगर आपको मैं कहूँ कि मोबाइल को आपको खाना और पॉइज़न, इन 2 में से एक चीज़ के साथ कंपेयर करना है, तो आप किसके साथ इसको जोड़ोगे.
तो अधिकतर पेरेंट्स कहते हैं कि पॉइज़न, ये तो बिल्कुल गलत है, पॉइज़न की तरह है। तो मोबाइल यूज़ को या स्क्रीन के यूज़ को हमने खाने के साथ अगर कंपेयर करना शुरू किया, न कि पॉइज़न के साथ, तो हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिलते हुए चले जाएंगे। तो अब एक के बाद एक हम देखेंगे क्या सवाल है। जैसे मोबाइल का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि ये तो खाना है, तो खाना चाहना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, खाना ही चाहिए। तो मोबाइल का यूज़ बच्चों ने भी करना ही चाहिए। 1.5 साल के नीचे के बच्चों के लिए ये ज़रूरी नियम है कि बच्चों ने मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए, मगर उसके बाद मोबाइल का यूज़ बच्चे कर सकते हैं। ये देखिए कि मोबाइल का यूज़ करना है नहीं करना है, ये तो सवाल ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज का जो जीवन है ये पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर डिपेंड हो चुका है। हमको कोई प्रोग्रेस करनी है, आगे सर्विस करनी है, जॉब करनी है, कोई बिज़नेस डालना है, या हमारे दैनंदिन जीवन में भी मोबाइल का यूज़ तो हर समय हमको लगता ही है। ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना कि हमारा जीवन बगैर मोबाइल के अब चल पाएगा भी कि नहीं। इसलिए मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है, ये भावना हमने निकाल लेनी चाहिए, बल्कि मोबाइल को यूज़ करना ही है। सिर्फ उसको सही यूज़ कैसे करना है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मोबाइल का यूज़, दूसरा सवाल आता है कि कितना करना चाहिए, और ये पेरेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल पेरेंट्स हमको पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको कितनी देर तक मोबाइल देना चाहिए, और मेन कंसंट्रेशन उनका इसी बात पर होता है कि कितने घंटे इसको मोबाइल देना है। तो अगर आप घंटों में गिनोगे तो इसका सही जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसका यूज़ ज़्यादा है या कम है और कितना करना चाहिए, ये दूसरी चीज़ पर निर्भर करता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि सर्वसाधारण तरीके से हम अगर देखें तो 2 साल से 5 साल के बच्चों के लिए आधे से 1 घंटा, और 5 साल के बच्चों के ऊपर 1 से 2 घंटा, इतना स्क्रीन टाइम गाइडलाइंस के हिसाब से ठीक है। मगर इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है कि स्क्रीन टाइम घंटों से हमने नहीं गिनना चाहिए। हमने गिनना चाहिए कि स्क्रीन टाइम के वजह से बच्चे की कौन सी एक्टिविटी छूट जा रही है, जैसे कि नींद, खेलकूद, आपसी कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें, और पढ़ाई, ये चौथी चीज़। अगर ये 4 चीज़ें स्क्रीन टाइम के वजह से अफेक्ट हो रही है तो वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। भले ही एक बच्चा है जो 1.5 घंटा स्क्रीन पर है, मगर उसकी ये चारों चीज़ें सही है। उसका नींद का जितना मैंने बताया आपको कि 9 घंटे नींद होनी चाहिए, उतनी उसकी हो रही है, वो पढ़ाई भी पूरी कर रहा है, खेलकूद भी कर रहा है, और उसका सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ कम्युनिकेशन, ये भी ठीक है। तो ये चारों चीज़ें अगर ठीक है तो वो 1.5 घंटा ज़्यादा नहीं है। मगर दूसरा बच्चा है जो 1 घंटा ही स्क्रीन पर है, मगर उसके वजह से उसकी 1 घंटा नींद कम हो रही है जितनी होनी चाहिए, तो वो 1 घंटा भी ज़्यादा है। तो हम घंटे देखने के बजाय ये देखें कि ये 4 एक्टिविटीज़ पे अगर इसका प्रभाव पड़ रहा है स्क्रीन का, तो वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। तीसरी बात है कि स्क्रीन कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। खाने की जगह खाना कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। अब आप सोते समय तो खाना नहीं खाओगे, गलत है। ट्रैवल करते समय तो खाना नहीं खाना चाहिए जहाँ बॉडी हल रही है। तो उसी तरह से स्क्रीन का भी कुछ है कि नींद के 1 घंटे पहले बिल्कुल स्क्रीन देखना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि जो मोबाइल होता है उससे ब्लू रेज निकलते हैं। ये ब्लू रेज हमारी आंखों में जाते हैं, और ये ब्रेन में जाने के बाद मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो शटडाउन हो जाता है, सिक्रेट होना। और मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? हमको नींद अच्छे से आने में मदद करता है। तो ये ज़रूरी है कि नींद के सोने के समय के 1 घंटे पहले तक बच्चों ने स्क्रीन, और हमने भी स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। दूसरा, कब हमने स्क्रीन नहीं देखना चाहिए? खाना खाते समय। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग रेस्टोरेंट में या घर पे साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और हर एक के हाथ में अपना अपना मोबाइल होता है। तो इसमें सोशलाइजेशन कहाँ हुआ? हम तो खाना खाने साथ में तो आए हैं, मगर हर आदमी तो अपने अपने स्क्रीन पर है। तो ये गलत है। तो खाने के टाइम स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। तीसरा है बात करते समय। बच्चों का आजकल बहुत सी बार ये देखा गया है कि वो पेरेंट्स से बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, मगर उनके उस समय उनके हाथ में मोबाइल होगा और वो अपने मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करते समय आदमी पूरी तरह से उस बात में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसकी नज़र भी सामने वाले के नज़र से मिलनी चाहिए, न कि उसकी नज़र स्क्रीन में गड़ी हो। और चौथा है कि
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है, जैसे कि हम पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट का समय लग रहा है, उस समय भी बच्चे स्क्रीन निकाल के बैठ जाते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। तो इन 4 जगहों को आपको स्क्रीन का यूज़ पूरी तरह से बंद कर देना है। उसके बाद है कि क्या खाना चाहिए, जैसा हम डिसाइड करते हैं कि हेल्दी खाना खाना चाहिए और अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, उसी तरह स्क्रीन टाइम का होता है कि हेल्दी स्क्रीन टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं, नॉन हेल्दी स्क्रीन टाइम को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हेल्दी और अनहेल्दी स्क्रीन टाइम है क्या, तो आप समझ लीजिए कि हेल्दी स्क्रीन टाइम 2 स्क्रीन टाइम को कहा जाता है। एक है एजुकेशनल स्क्रीन टाइम, जैसे आपने अभी देखा है कि लॉकडाउन के समय में सभी स्कूल और इवन आपकी भी स्कूल इतनी मेहनत लेके इतने वीडियोस आपको भेजती है, अलग अलग टीचर्स इसमें मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई पे बुरा असर ना हो और आप लॉकडाउन के समय में भी अपनी पढ़ाई अच्छी कर सको। इससे क्या होता है, ये स्क्रीन टाइम हुआ एजुकेशनल स्क्रीन टाइम। इसके अलावा बच्चा अगर मोबाइल पे कोई कोर्स सीखना चाहता है, फोटोग्राफी सीखना चाहता है, अलग कोई स्किल सीखना चाहता है, तो वो भी हुआ एजुकेशनल स्क्रीन टाइम। तो जो भी स्क्रीन टाइम एजुकेशनल स्क्रीन टाइम होता है उसे हम हेल्दी स्क्रीन टाइम कहते हैं। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। लोग कहते हैं कि अभी तो 3-4 घंटे हमको स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, तो ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये हेल्दी स्क्रीन टाइम है। दूसरा हेल्दी स्क्रीन टाइम है प्रो सोशल स्क्रीन टाइम। प्रो सोशल स्क्रीन टाइम यानी जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो स्क्रीन के मार्फत, भले ही वो ऑडियो कॉल हो या वो वीडियो कॉल हो, हम किसी रिश्तेदार से, दादा दादी से, फ्रेंड से हम बातचीत कर रहे हो, तो ये स्क्रीन टाइम हुआ प्रो सोशल स्क्रीन टाइम। ये भी हेल्दी स्क्रीन टाइम है। तो प्रो सोशल और एजुकेशनल इस स्क्रीन टाइम को हम हेल्दी कहते हैं, और ये स्क्रीन टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ करो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें पेरेंट्स का एक कंसर्न बहुत होता है कि भाई हम इतनी देर तक अगर स्क्रीन पर रहेंगे तो हमारे बच्चों की आंखें ख़राब होती है। तो आपको इसके लिए मैं एक सिंपल रूल बता देता हूँ, 20-20-20 का रूल है। इसको कहते हैं 20-20-20। क्या है ये रूल, कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आप 20 मीटर दूर की चीज़ को देखिए। अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो आपको 20 मिनट के बाद सिर्फ 20 सेकंड के लिए, ज़्यादा समय नहीं है, आपको दूर के किसी चीज़ पे आपकी नज़र को डालना है और वापस से आप 20 सेकंड बाद स्क्रीन देखना चालू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी आई की जो मसल्स है जिस पे स्ट्रेन आता है वो रिलैक्स हो जाएगी। आप 4 घंटे भी स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो भी आपको थकावट नहीं आएगी और आपकी आंखें स्ट्रेन महसूस नहीं करेगी। तो ये हुआ एजुकेशनल और प्रो सोशल, जिसे हम हेल्दी स्क्रीन टाइम कहते हैं। अब अनहेल्दी स्क्रीन टाइम क्या है जिसको हमको अवॉइड करना है। हम बार बार सुनते हैं कि स्क्रीन टाइम अवॉइड करना चाहिए। वो किस स्क्रीन टाइम के बारे में कहा जाता है, अनहेल्दी स्क्रीन टाइम के बारे में। तो अनहेल्दी स्क्रीन टाइम क्या है, दिन भर व्हाट्सएप की चैट देख रहे हैं या यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं जिसको कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है, सिर्फ स्ट्रीमिंग कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि वीडियो स्ट्रीमिंग, ये हुआ अनहेल्दी स्क्रीन टाइम। इसमें से ये पैसिव स्क्रीन टाइम भी इसको कहते हैं कि एक तरफा आपके ऊपर बम्बार्ड हो रहा है जिसमें कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है, ना कोई प्रो सोशल वैल्यू है, जिसका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो ऐसा नहीं कि इस स्क्रीन टाइम को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। हम देखते हैं कि कभी कभी हमको अनहेल्दी चीज़ें भी कभी कभार हम खा लेते हैं, हफ्ते में 1 आधी बार समोसा भी खा लेते हैं या कभी कभार पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, वो तो अनहेल्दी है, मगर कभी कभी खाने के लिए मनाही नहीं है, मगर रोज़ नहीं खानी चाहिए। उसी तरह से अनहेल्दी स्क्रीन टाइम को आपको लिमिट करना है, बाकी हेल्दी स्क्रीन टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हुआ कि अनहेल्दी स्क्रीन टाइम को हेल्दी कैसा बनाया जाए, ये भी एक बात है। जैसे हम देखते हैं कि खाना तो पिज़्ज़ा है मगर अब उसको हेल्दी बना के खाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, उस पर वेजिटेबल का टॉपिंग डालते हैं। तो कुछ तरीके से उतना वेजिटेबल तो हमारे पेट में चला गया, तो जितना बुरा पिज़्ज़ा पहले था सिर्फ मैदे का, उससे कुछ तो हेल्दी बन गया वेजिटेबल डालने से। उस तरह से क्या हम अनहेल्दी स्क्रीन टाइम को भी हेल्दी स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए एक अभी पिछले 10 साल में जो एक बहुत ही प्रचलित साइंटिफिक डिस्कवरी इसके लिए हुई है, जो आज इसका इस्तेमाल बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, वो भी आप करिए। इसको कहते हैं को-विविंग। को-विविंग यानी साथ में बैठ के स्क्रीन देखना। जैसे बच्चा कोई टीवी पे या मोबाइल पे कुछ देख रहा है, अगर उसके साथ पेरेंट बैठ जाते हैं और वो भी उसके साथ उस चीज़ को देखते हैं, तो इसमें ऐसा कहते हैं कि अनहेल्दी स्क्रीन टाइम हेल्दी हो जाएगा। अब ये कैसे होता है?
बच्चा मान लो कोई गेम खेल रहा है फॉर एग्जांपल वो कार की रेस का गेम बच्चे खेल रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट होता है उनको। अब होता क्या है इसमें कि उसकी कार कहीं किसी चीज़ से टकरा जाती है, वो 3-4 बार उल्टी पल्टी हो जाती है, फिर वो सीधी हो जाती है और वो फिर रेस लगाने लगता है। इस समय अगर आप उसके पास में बैठे हो तो आप उससे बातचीत कर सकते हो। उसको आप क्या बता सकते हो कि बेटा सोचो कि अगर आप सही मायने में एक्चुअली अगर इस प्रकार की कार चला रहे हो और आपकी कार गिर जाती है तो उस समय क्या होता है। हमारी कार बिगड़ जाती है, उसको गैरेज में देना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, हमारे को बॉडीली इंजरी हो सकती है, हम सीरियस भी हो सकते हैं। तो ये जो आपने गेम में देखा ये एक काल्पनिक चीज़ थी, सही लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो रियलिटी चेक हम बच्चे को देते हैं ये को व्यूइंग से हम दे सकते हैं। टीवी का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें एक 2 मिनट का बीच में ब्रेक आता है जिसमें वो फैंटा की या कोको कोला की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, कोई हीरो है जो उसको पीने के लिए प्रमोट करना चाह रहा है। उस एडवर्टाइज के समय अगर हम बच्चे से बातचीत करते हैं कि ये उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कर रहे हैं, ये वो चाहते हैं कि उनका बिक्रा बढ़े जिससे उनको प्रॉफिट होगा, ये पीना हमारे लिए हानिकारक है, बल्कि जो एक्टर इसको बता रहा है वो भी शायद इसको नहीं पीता होगा। तो ये चीज़ें जो रियलिटी चेक में हम ला सकते हैं, ये बच्चों के साथ कम्युनिकेट अगर हम करेंगे स्क्रीन देखते समय तो बच्चे, इसलिए को व्यूइंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उभर के अभी आया है। इसको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, को व्यूइंग नाम से करिए, या जॉइंट मीडिया एंगेजमेंट भी इसको कहते हैं, JME जॉइंट मीडिया एंगेजमेंट, जिसमें हम दोनों तरफ के लोग अगर एक दूसरे से, ये को व्यूइंग ये हुआ जिसमें आप और बच्चा स्क्रीन पे बैठे और आपस में बात कर रहे हैं, मगर स्क्रीन के उधर जो है वो आपसे बात नहीं कर रहा है। जॉइंट मीडिया एंगेजमेंट में ये भी होता है कि जैसे आपका कोई सेशन जूम पे हो रहा है और टीचर आपको उधर से कुछ पूछ रहा है और आप इधर जवाब दे रहे हो, तो ये जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हुआ दोनों पार्टीज़ का। तो इस प्रकार से अगर हम कुछ चीज़ें करते हैं तो अनहेल्दी स्क्रीन टाइम को भी हम हेल्दी स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे कि जैसे आप खाने के लिए बहुत बच्चे पे कोशिश करते हैं छोटे से बड़ा करते समय कि बच्चे ने क्या खाना चाहिए, उसको भी सिखाते हैं कि बच्चा ये खाना अच्छा होता है, ये खाना गलत होता है, ये चीज़ें कम खानी चाहिए, ये चीज़ें खाने से ऐसा नुकसान होता है। ये सब हम क्यों करते हैं? एक प्रकार के संस्कार हम उस पर डालते हैं। और ये डालने का हमारा मुख्य पर्पस क्या होता है उसके पीछे, कि बच्चा अभी तो छोटा है, वो बड़ा होगा, फिर हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाएगा, बाहर गांव जाएगा, क्या उस समय आप उसके साथ पूरा दिन रहोगे? आज तो आपके घर में बच्चा आपके सामने है तो आप उसको हर तरह से खाने पीने के लिए कंट्रोल कर रहे हो, अच्छा ही खाना बना रहे हो ताकि वो अच्छी चीज़ उसके पेट में जाए। मगर जब वो हॉस्टल में जाएगा, जब दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाएगा, आप वहाँ पर नहीं होंगे। उस समय बच्चे का फूड का चॉइस अगर हम बचपन से बड़ा होने तक सिखा कर भेजते हैं तो बच्चा वहाँ भी अच्छा चॉइस करेगा और वो अपनी पूरी ज़िंदगी में हेल्दी खाना सीखता है। इसी तरह से स्क्रीन टाइम को भी आप इसी तरह कंपेयर करिए कि आज के दिन का स्क्रीन टाइम आपने उससे मोबाइल छीन लिया और कम कर लिया, उसको डांट डपट कर दिया और उसका स्क्रीन बंद कर दिया और आज का उसका स्क्रीन टाइम आपने लिमिट कर लिया, तो क्या इससे आपका पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। जब वो हॉस्टल जाएगा तब क्या करेगा? तब तो दिन भर स्क्रीन में रहेगा और आपका किसी तरह का कंट्रोल उस पर नहीं रहेगा। तो जिस तरह खाने के लिए आपने इतनी मेहनत ली, उसको सिखाया बार बार, उसी तरह से स्क्रीन के बारे में भी आपको ये डेवलपमेंट बच्चे में करनी है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न, कि आपको बच्चे को क्या बनाना है। बच्चे को रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न बना के आपको भेजना है आगे, ताकि बड़ा होने के बाद जब उसके कॉलेज एडमिशन हो और वो जब बाहर जाए तो वो स्वनियंत्रण अपने पे कर पाए, खुद का सेल्फ रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं वो कर पाए। तो कैसे कर सकते हैं हम ये? बच्चे के साथ हम ऐसी क्या चीज़ें रोज़ बरोज़ घर में करें जिससे वो एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न बन के इस दुनिया में आए, क्योंकि आजकल का ज़माना डिजिटल हो चुका है, हर आदमी को डिजिटल बनना ही है, उसी से उसका ज़िंदगी का प्रोग्रेस होने वाला है। तो क्यों ना आज से ही हम बच्चे में ऐसी हैबिट्स इनकलकेट करें कि जिससे बच्चा रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न बने। तो हम ये कैसा करें? तो सबसे प्रथम बात ये है कि बच्चे के साथ आपको कम्युनिकेट करना है स्क्रीन के बारे में।
बच्चे को ये लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स के साथ भी मैं स्क्रीन पर भी चर्चा कर सकता हूँ, वीडियो पर भी चर्चा कर सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट पर भी चर्चा कर सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि बेटा क्या तुमने प्रोफाइल पिक्चर क्या रखा अपना, बताओ हमको, तुमने क्या पोस्ट डाली, किस पोस्ट पे आपने क्या रिएक्ट किया, आपको ये पोस्ट कैसी लगी। अक्सर हम इस टाइप का कम्युनिकेशन बच्चों के साथ नहीं करते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये चीज़ तो पेरेंट के साथ बात करने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारी प्राइवेट चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस प्रकार की बातचीत अगर आपकी बच्चे के साथ होगी तो बच्चे के मन में क्या है और वो किस पोस्ट को कैसा इंटरप्रेट करता है, कौन सा प्रोफाइल पिक्चर रखता है, ये प्रोफाइल पिक्चर रखना सही है या गलत है, ये चर्चा आप बच्चे के साथ एक दोस्त बन के करिए। जो आसपास आपके कोई इंसिडेंस हुआ, आपने कोई पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि उसका किसी का इंटरनेट की वजह से कोई बैंक से पैसे निकल गए या उसके साथ कोई बुरा हुआ, उसके कोई फ़ोटो को गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, तो ये चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है वो बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करिए कि आज ऐसा किस्सा मैंने पढ़ा, उसके साथ ऐसा हुआ, तुम क्या सोचते हो कि क्या करते थे तो ये किस्से से वो अवॉइड हो सकता था। तो इस प्रकार की चर्चा जब आप बच्चे से करोगे तो बच्चा खुलकर बात करेगा और आपका और बच्चे का ट्रस्ट आपस में डेवलप होगा। दूसरी चीज़ जो हमको नहीं करना है बच्चों के साथ वो है स्पाइंग, जासूसी। बच्चा इधर उधर गया कि तुरंत उसका मोबाइल लिया, खोल के देखा कि इसने किसको फ़ोन लगाया था, व्हाट्सएप पे क्या डाला था, फेसबुक पे क्या डाला था। इस प्रकार की बात कदापि आप बच्चे के साथ मत करिए। ये स्पाइंग और जासूसी करने की एक आदत कुछ पेरेंट्स में होती है, ये बहुत ही बुरी है। ये बच्चे के और आपके बीच में का जो ट्रस्ट होता है, जो विश्वास होता है, वो टूट जाता है। इससे बच्चा ऐसा पासवर्ड लगा देगा कि आप ज़िंदगी भर खोल भी नहीं पाओगे। तो क्या फ़ायदा हुआ आपका देख के। अनलेस आपके पास कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस है कि जिसके लिए आपको बच्चे के मोबाइल में वो चीज़ देखना है, वो एक चीज़ को छोड़कर आप रेगुलर में जो एक आपकी आदत है पेरेंट्स की, कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि स्पाइंग करना बच्चे के मोबाइल में, ये पूरी तरह से बंद कर दीजिए। उसके बाद है कि जो उसके सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसका फेसबुक है, उसका इंस्टाग्राम है, इस पे आप फ्रेंड बनिए उनके। ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चा किस टाइप की पोस्ट डालता है, किस टाइप के पोस्ट में इंटरेस्ट है उसका, किस टाइप के पोस्ट को वो रिएक्ट करता है, क्या उसका कोई बिहेवियर, ऑनलाइन बिहेवियर गलत है, ये आपको पता चलेगा। अब हम बहुत सारे बच्चे जब पेरेंट्स के साथ आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप बच्चे अपने माँ बाप को आपका फ्रेंड रखिए। तो वो क्या कहते हैं कि अंकल हमने तो रखा था, पर इन्होंने ऐसा कुछ किया कि जिससे हमको निकालना पड़ा। अगर ऐसा क्या कर दिया, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के फेसबुक अकाउंट में बच्चे ने कुछ पोस्ट डाली तो उस पर कमेंट करेंगे, अपनी भी कुछ पोस्ट उस पर डालेंगे। बच्चे के फेसबुक और इंस्टा पे आपको फ्रेंड बनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आप वहाँ साइलेंट ऑब्जर्वर हो। आपको वहाँ कोई एक्टिविटी करना नहीं है। आपकी एक्टिविटी करने के लिए तो आपके अकाउंट कम थोड़ी ना है, आप उस पर करिए एक्टिविटी। बच्चे के फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पे किसी तरह की एक्टिविटी मत कीजिए जिससे बच्चा अपने फ्रेंड्स में एम्बरास हो, उसको ठीक नहीं लगे, बाकी बच्चे उसकी मजाक उड़ाए, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको जिस पर्पस के लिए वहाँ रहना है उस पर्पस को आप वहाँ फुलफिल करिए। उसके बाद है कि बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि कौन सी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं वो शेयर नहीं करना चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें भी बच्चों के साथ डिस्कस करके हम उनको सिखा सकते हैं। फिर जैसे हम बच्चों को घर में मैनर्स सिखाते हैं कि कोई हमारे यहाँ गेस्ट आए तो किस प्रकार से उनको नमस्ते करना है, किसी के साथ मजाक नहीं करना है ताकि उनको बुरा लगे, हर चीज़ के मैनर्स हम बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या हम ऑनलाइन मैनर्स भी बच्चों को सिखाने नहीं सिखाते कभी? ऑनलाइन भी मैनर्स होते हैं। आज डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन मैनर्स का बहुत बड़ा महत्व हो चुका है कि आप किसी की मजाक न उड़ाए, किसी पोस्ट पे ऐसी मजाक न करे कि जिससे आपकी उसकी दुश्मनी हो जाए, वो आपसे नाराज़ हो जाए। तो इस प्रकार के ऑनलाइन मैनर्स भी आप बच्चों के साथ डिस्कस करिए। उसके बाद है कि बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन कैसे करना है, नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखना है, रात में सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल नहीं देखना है, बेडरूम में मोबाइल नहीं रखना है, रात में नींद खुल जाए तो तुरंत मोबाइल को हाथ में नहीं लेना है। ये चीज़ें भी बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन हमको सिखाना है। मगर ये चीज़ें सीखने में और सिखाने में एक चीज़ आड़ आती है कि कुछ पेरेंट्स बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी के बारे में अनजान होते हैं।
खुद कुछ भी नहीं समझते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और बच्चा तो बहुत ज़्यादा समझता है, तो बच्चा ऐसे पेरेंट्स के साथ बैठ के बातचीत भी करना नहीं चाहता। तो मेरी आपको सलाह है कि आप भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज गेन करिए, आप भी देखिए कि इन ऐप्स को कैसा यूज़ किया जाता है। थोड़े बहुत चीज़ें आपको भी मोबाइल पे आनी चाहिए। अगर आपको कुछ लेवल तक का नॉलेज मोबाइल में आएगा तो बच्चा भी आपके साथ बैठ के चर्चा कर सकता है, अन्यथा वो चर्चा करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो आप अपना भी कैपेसिटी बिल्डिंग करिए इसमें। एक चीज़ है कि इंटरनेट सेफ्टी के बारे में बहुत ही आपके रूल्स घर में सेट होने चाहिए। बच्चों को आपको हमेशा बता देना है कि कोई भी धमकी भरी ईमेल आपको आए, धमकी भरा कोई मैसेज आपको आए तो आपको उसको रिप्लाई नहीं करना है और तुरंत हमको बताना है। हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ बच्चे एक एक डेढ़ महीने तक पेरेंट्स को नहीं बताते हैं कि एक कोई नंबर से हमको इतने मैसेजेस आ रहे हैं और गलत कोई चीज़ वो हमको लिख कर भेज रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये अगर हम पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमको डांटेंगे, हम पे गुस्सा करेंगे, हमको कभी मारेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि बच्चे जो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते कोई भी चीज़, ये बच्चों का जो एक पास्ट का अनुभव आपके साथ रहा है उसमें आपकी कुछ गलतियां हो चुकी है। जब भी बच्चे के हाथ से कोई गलती होती है और बच्चा हमारे पास आता है तो हमारी पहली रिएक्शन क्या होती है? उसको डांटना। अब देखिए कि एक बच्चा गिर गया है और उसका खून बह रहा है मान लो यहाँ से, तो पहली चीज़ तो हम उसको डांट देते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। आप देखिए वो बच्चा गिरा है, उसको यहाँ दर्द हो रहा है, उसका खून बह रहा है, ऐसे समय क्या वो आपके डांट का हकदार है? कि क्या अभी आपको आपका प्यार और सपोर्ट उसको चाहिए? उससे क्या गलती हुई ये तो हम और किसी समय भी डिस्कस कर सकते हैं, मगर इस समय तो आपको उसको सपोर्टिव रहना है, मगर आप नहीं रहे। तो ये जो उसके पास्ट ऐसे अनुभव है, तो इससे वो क्या सीखता है कि आपके साथ उसकी गलती को वो शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं गलती शेयर करूं तो मेरे पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे। तो आपको ये हमेशा उसको विश्वास दिलाना है कि बेटा आपसे कोई भी गलती हो जाए तो हम आपसे गलत व्यवहार नहीं करेंगे, आप सबसे पहले हमसे शेयर करो। अगर बच्चा इतनी बात आपसे सीख जाता है कि उससे गलती होने पर वो आपसे शेयर करे तो बहुत सारे बढ़ने वाले प्रॉब्लम्स को आप वहीं रोकथाम कर सकते हो। तो इस प्रकार का बच्चे का व्यवहार, बच्चे का विश्वास आपको जीतना है। तो इतनी चीज़ें हमने देखी कि जिससे बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न बन सकता है। तो स्क्रीन टाइम के बारे में जो आज हमने चर्चा की, इसका भी इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में करिए और धीरे धीरे इसमें बहुत सारा स्क्रीन टाइम आपका हेल्दी हो जाएगा और बच्चे को अच्छी आदतें लगेगी और आपका बच्चा एक रियल सेंस में रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न बन जाएगा। धन्यवाद। All things come to an end, and so is this webinar. But before that, I would propose a vote of thanks to our guest of honor, Dr. Narendra Rathi. Thank you, sir, for addressing us. We are really privileged and blessed with your interesting and thought-provoking seminar. I am sure that all the viewers have taken a note of your valuable suggestion. Thank you once again, sir, for addressing us. I would also take an opportunity to thank our director, Dr. Gajanan Nare sir and Vandana Nare ma'am for their guidance and contribution. I would also take an opportunity to thank all the parents who have taken out time and have been with us in this webinar. With these kind words and warm wishes, I would like to end this webinar. Thank you.